السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ لوگ کو ہم بتانے والے ہیں روزے کا نصب العین۔ حامدا و مصلی علی اما بعد، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فلیس اللہ حاجتا ان يدع طعامه وشرابه، بخاری شریف۔ معزز حاضرین اور بزرگان دین، پچھلے جمعہ کو میں نے رمضان المبارک کے فضائل اور دیگر خدا کی نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ روزہ رکھنے کا مقصد اصلی کیا ہے، اس کے کیا مقصد ہے، دنیا و آخرت میں اس کے کیا فائدے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ اور لگن کے ساتھ سماعت فرمائے۔ حضران اسلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی اتنی طویل مدت میں آسمانی یا غیر آسمانی مذہب و ملت میں ایسی نہیں گزری جس میں عبادت صوم نہ پائی جاتی ہو۔ ہر قوم، ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں روزے کا وجود رہا ہے، اگرچہ ہر ایک کا طریقہ الگ الگ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ فاقہ کشی، تزکیہ نفس اور روشنی روح کی طلب اور اس کا ذریعہ قریب قریب تمام اقوام میں مل پایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہر مہینے کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض تھے۔ یہودیوں کے یہاں محرم کے 10 تاریخ اور جبکہ کچھ روزے فرض تھے۔ نصارہ کے یہاں ہماری ہی طرح رمضان کے روزے فرض تھے، مگر انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق ان میں تغیر و تبدیل کر لیا تھا۔ لیکن دوستو، اسلام نے روزے کا جو نصب العین ٹھہرایا ہے، اس میں جو خیر و برکت رکھی ہے، اس کے لحاظ سے کسی مذہب اور کسی قوم کا روزہ اسلامی روزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ برادران ملت، ہر چیز کی قدرت و منزلت اور اہمیت اس کے نصب العین سے ظاہر ہوا کرتی ہے۔ اگر اس کا مقصد ہر اعتبار اور ہر پہلو سے بلند و برتر ہے تو وہ کام بھی بلا شبہ انتہائی عظیم و جلیل ہوگا، لیکن اگر اس کا مقصد غرض گھٹیا، اس کی بنیاد درست نہیں ہے تو وہ بظاہر خواہ کتنے ہی دلکش اور اچھا ہو، خدا پاک کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت اور حقیقت نہیں، اور نہ ہی اس پر کوئی ثواب مرتب ہو سکتا ہے، بلکہ وہ ایک بے جان اور فضول ہو کر رہ جائے گا اور قیامت کے دن وبال جان بن جائے گا۔ ان میں کوئی شک نہیں کہ روزے کا مقصد انتہائی عظیم الشان، بلند و برتر ہے۔ غیر مسلموں کی عبادت کی طرح کوئی رسمی یا فرضی عبادت نہیں، بے سر و پایاتاؤں کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے نہیں کی جاتی ہے، بلکہ روزے کا مقصد اور غرض صرف خالق کائنات کی رضا اور اس کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ روزے کا مقصد تقوی و طہارت کے منازل طے کر کے قرب خداوندی حاصل کرنا ہے۔ اسی مقصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ پچھلی امتوں کی طرح ہم نے تم امت محمدیہ پر بھی روزے کو فرض کیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزے کی اہمیت، اس کے مقصد عظیم اور ان کے انتہائی اعلیٰ اور بلند ہونے کی بنا پر ہم نے پہلی امتوں کی بھی اس کا مکلف بنایا تھا، اور پچھلے لوگوں کو بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ روزہ رکھے۔ تم لوگوں کو تمام امتوں سے بہتر پیدا کرنے کے باوجود کیسے تم کو روزے سے بری رکھا جا سکتا تھا، اور کیسے اس اہم عبادت اور اس کے مقصد رافع کے حصول سے تم کو محروم کیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا مقصد کوئی ذاتی اور گھٹیا نہیں، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم روزہ رکھ کر میری خوشنودی حاصل کر سکو، تقوی طہارت کے درجات پا سکو، چوری، زناکاری، غیبت، جھوٹ، جنگ و فساد اور دیگر تمام لغویات کو چھوڑ کر تمہارے اندر اطاعت و فرما برداری کی صفت پیدا ہو جائے، اور اللہ کو خوش کر کے مقصد اصلی جنت میں داخل ہو کر وہاں ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکو۔ لیکن افسوس اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج پورے عالم اسلام کے مسلمانوں میں روزہ رکھنے کا رواج ہے، اور دنیا کے ہر خطے، ہر کوشے میں روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن انسانوں کے عادات اخلاق میں کوئی فرق نہیں آتا۔ پورے مہینے روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن کسی کے اندر بھی صفت تقوی پیدا نہیں ہوتا، کوئی بزرگ پرہیزگار نہیں بنتا، حالانکہ روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون کہا ہے۔ پھر آخر ایسا کیوں، اس کی وجہ اور سبب کیا؟
नाऊज़ बिल्लाह, खुदा का कहा हुआ कलाम गलत और झूठ है या उसके अंदर कोई कमी और नक्स है, यानी यकीनन खुदा का कलाम असहुल कलाम है। अल्लाह ताला अस्दकुल क़ाइलीन है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि हमारी देखी और सुनी हुई बातें झूठ हो सकती है, सूरज और चांद बेनूर हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का कलाम और उसके रसूल की ज़ुबान से निकली हुई बात कभी भी झूठ और गलत नहीं हो सकती। फिर क्या वजह है कि हम मुत्तकी नहीं बन पाते? क्यों हमारे अंदर परहेजगारी नहीं आती? अगर आप ठंडे दिलो दिमाग से उसकी वजह तलाश करेंगे और उस पर गौर करेंगे तो यकीनन ये कहना पड़ेगा कि हमारे अंदर ही कमी है, हमारी नीयत और एतकाद में कमी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों की नीयत के मुताबिक इबादतों के सवाब का फ़ैसला करते हैं। पूरे महीने हम रोज़ा रख लेते हैं, लेकिन हम अपनी नीयत दुरुस्त नहीं कर सकते हैं, अपना मकसद ठीक नहीं कर सकते, बल्कि बहुत से लोगों को ये भी मालूम नहीं हो पाता है कि हम रोज़ा क्यों रख रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। महज रस्मी तौर पर सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक भूखे प्यासे रह जाते हैं और समझ लेते हैं कि असली इबादत यही है। ना तो उनके मामूलात में कोई फ़र्क आता है, ना कारोबार में। अगर रमज़ान से पहले सूद का कारोबार कर रहा है तो रमज़ान में भी इसी तरह सूद का कारोबार करते हैं। गद्दारी, दगाबाजी, आपस में झूठ बोलना, दूसरे मुसलमानों की ग़ीबत, चुगली सब होती है, तो फिर किस तरह रोज़े का मकसद हासिल हो सकती है? क्योंकि हम मुत्तकी और परहेजगार बन सकते हैं जिन चीज़ों से मना किया गया है। अगर हम उन चीज़ों से ना रुके तो एक महीने क्या पूरी ज़िंदगी भी रोज़ा रख ले तो हमारी तकवा में कोई फ़र्क नहीं आ सकता। जिस तरह मरीज़ अगर डॉक्टर के कहने के मुताबिक दवा करता रहे लेकिन बतलाए हुए परहेज़ पर अगर अमल ना करे तो 1-2 माह क्या ज़िंदगी भर दवा करता रहेगा, उसके मर्ज़ में कुछ अफाका नहीं हो सकता। उसको ताजदार बतहा सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम ने बतलाते हुए फरमाया, यानी जब तुम में से कोई रोज़ा रखे तो वो बेहुदा और नामुनासिबत हरकत ना करे और ना कोई ज़िबा कलिमात अपनी ज़ुबान से निकाले, गुस्से की हालत में भी ज़ोर ज़ोर से किसी से बात ना करे, और अगर बिला किसी पहल के दूसरा आदमी तुमसे लड़ाई झगड़ा करना चाहे, गाली गलौज करे तो उनसे साफ अल्फाज में कह दो कि हम झगड़ा करना नहीं चाहते, हम रोज़े से है और रोज़ा का एहतराम करते हैं। इसी माने को बयान करते हुए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे मौके पर फरमाया, यानी दुनिया में जितने भी रोज़ादार हैं उनमें बेशुमार लोग तो ऐसे पाए जाते हैं जो अपने गुमान के एतबार से रोज़ा तो रख लेते हैं, यानी रोज़ा रख कर भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते हैं, जमा वगैरह से भी रुकते हैं, लेकिन हकीकत में उनका रोज़ा नहीं होता, यानी अल्लाह के नज़दीक यह रोज़ा काबिल कबूल नहीं है और उसकी कोई हैसियत नहीं होती, ना सवाब मिलता है और ना ही उस पर अज्र दिया जाता है। उसे सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि उन्होंने रोज़ा तो रखा मगर दूसरी मना की हुई चीज़ों की परवाह ना किया, ना मुनासिब कामों का अर्तकाब करता रहा। गांव और मोहल्लों में चंद आदमी जमा होकर ताश, जुआ और दूसरे खेल तमाशे में मशगूल होकर वक्त गंवाता रहा। कितने अफसोस की बात है कि ऐसे रोज़े और भूख के प्यास से रहने से क्या फ़ायदा, तमाम की तमाम मेहनतें रायगां चली जाती है। जैसे कि अगर कोई शख्स रात भर बेदार रहकर खुदा की इबादत करे लेकिन उसका एतकाद व मुंजिलत हो, नियत सही ना हो, बुनियाद ठीक ना हो, तो ऐसे बेदार रहने से कुछ हासिल नहीं सिवाय थकान और बेदारी के। उसके लिए के इबादत की जो जड़ और बुनियाद है उसमें कोताही और सुस्ती है, तो फिर हमारी इबादत कबूल कैसे हो सकती है। इसलिए दोस्तों, खुदा का फरमान है लअल्लकुम तत्तकून 100% सही है, लेकिन शर्त यह है कि खुदा के फरमान और सुन्नत रसूल के मुताबिक हो। यकीनन आज भी रोज़ादार को मुत्तकी और परहेजगार बना सकता है। हज़रात गिरामी, रोज़ा का जहाँ एक फ़ायदा यह है कि रोज़ा क़ुव्वत रूहानिया को उभारता है, वही दूसरा फ़ायदा यह भी है कि रोज़ा लोगों को भूख प्यास की तकलीफ़ से रोशनास कराता है और गरीब इंसानों के साथ और फाका कश भाइयों से हमदर्दी सिखाता है और कौम का हमदर्द बनाना सिखाता है।
हुए है फ़र्ज रोज़े इसलिए कि तुम शर्माओ, खिलाओ भाइयों को अपने खुद फाका कम खाओ। अदाए सूम ही से कौम के हमदर्द बन जाओ, रियाजत का लगाओ बाग तो जन्नत का फल खाओ। बरादरान इस्लाम, ये रोज़ा रोशन की तरह यहाँ है कि किसी भी इंसान को उस वक्त तक दूसरे की परेशानी, मुसीबत और तकलीफ़ समझ में नहीं आती जब तक कि खुद उस मुसीबत और परेशानी को ना झेला हो। बड़े बड़े दौलतमंद को जब एक बार भूख व प्यास का जायका चखने का मौका मिलता है तो उससे अंदाज़ा होता है कि जो हालत मेरे ऊपर आज चंद घंटों के लिए आई है, बेचारे गरीब और मुफलिस बंदे उसमें हफ्ते और महीने नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इसी तरह मालदारों और अहले सरोज को जब गरीबों की हालत का अंदाज़ा होगा तो उनके दिलों में हमदर्दी पैदा होगी और आपस में अमीर गरीबों के दरमियान हसद और दुश्मनी के बजाय मोहब्बत और हमदर्दी पैदा होगी और हर एक दूसरे के काम आने के लिए तैयार होगा। इसी तरह रोज़ा का एक अहम फ़ायदा ये भी है कि दिन भर भूख प्यास से रहने के बाद जब शाम में हमारे पास रोज़ा खोलने के लिए इफ्तारी आती है तो अल्लाह की दी हुई नेमत खाने और पीने को इंतहाई कदर व मंजिलत की निगाह से देखते हैं और वह आला रिस्क का अफ्तर तो कहकर खुदा की नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं। हज़रात गिरामी, रोज़े में जहाँ बेशुमार दीनी फ़ायदे हैं वही तबी और सेहत के एतबार से भी इंसानों के लिए बेशुमार फ़ायदे अल्लाह ने पोशीदा रखा है। चुनांचे डॉक्टरों का कहना है कि सिर्फ रोज़े के ज़रिए इंसानों को इतनी बीमारियों से शिफा होती है किसी और तदबीर से नामुमकिन है। चुनांचे एक मशहूर डॉक्टर दाइल शुआ अपनी किताब में लिखता है कि उस उसूल पर तमाम डॉक्टर मुत्तफिक है कि खाना पीना छोड़ देना बीमारियों को रफ़ा करने की एक ख़ास तदबीर है। इस सिलसिले में डॉक्टर मौसूफ ने एक बहुत अहम नुक्ता बयान करते हुए लिखा है कि खाना पीना छोड़ने से हज़म करने वाली ताकत फारिग होकर पूरी तरह बदन की सफाई में लग जाती है और हर किस्म का जहरीला मादा बदन से बाहर निकाल कर बाहर कर देती है। इसी तरह पेट भी कभी बहुत काम करते करते थक जाता है और आराम चाहता है, लिहाजा पेट और मादे को आराम देने का सबसे आसान और बेहतर तरीका रोज़ा है। रोज़ा का सेहत और शिफा के लिए मुफीद होना उस कुदरती उसूल से भी मालूम होता है कि जब इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसका जी खाने पीने को नहीं चाहता है। गोया खुद तबीयत ये सिखाती है कि अब खाना छोड़ दूँ और जहाँ एक दो वक्त खाने में एहतियात कर लिया और फाका कर लिया तो तबीयत संभल जाती है। दोस्तों और बुजुर्गों, उस वक्त ये मौका नहीं, वरना मैं बयान करता कि इस्लाम के एक एक उसूल को जब मादे नुक्ताए नज़र से जांचा जाए तो आखिरत के नहीं खुद दुनिया के कितने बड़े बड़े फ़ायदे मालूम हुए कि जिसका शुमार करना नामुमकिन है। अगर इसी तरह शरीयत के तमाम बातों पर गौर किया जाए तो ये बात साफ नज़र आएगी कि आज भी दुनिया के तमाम इंसानों के लिए ज़िंदगी गुजारने का अगर कोई सबसे ज़्यादा सलामती और चैन का तरीका है तो वह सिर्फ वही तरीका है जो आज से 1400 बरस पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को दिया था और जितनी ज़रूरत उस वक्त थी उससे ज़्यादा आज उसकी ज़रूरत है। रोज़ा आम जिस्मानी सेहत व क़ुव्वत के लिए एक निहायत मुफीद अमल है। उसको बयान करते हुए हमारे आका मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी राह खुदा में जंग करो, गनीमत के माल हासिल होगा और रोज़े रखा करो, सेहतमंद हो जाओगे और कारोबार के लिए सफ़र किया करो, मालदार हो जाओगे। बुज़ुर्गों और दोस्तों, आपके सामने रोज़े का निस्बुल आइन और रोज़े का रूहानी और मादी फ़ायदे बयान किए गए, लिहाजा तमाम हज़रात से गुजारिश है कि उन तमाम बातों पर गौर फरमा कर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम लोगों को दीन की समझ अता फ़रमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरुद्दावानु अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।